Good morning, students. How are you all? Fine? Yes. Now, in the last lecture, we have done the example 13 of determinant, right? Yes. Now, we go ahead with the example 14 of this determinant. That is, we will do the proof that sums without expanding. हमें expand नहीं करना है. So, we will use the determinant property जो हमने कल देखी थी. So, we will use this properties and then without expanding. पहले अगर expand कर देते हैं तो it's okay, it is not wrong. But मैंने आपको बताया था that it is very lengthy. It's a difficult task. We may not get the answer, right? So, don't expand it. First, use the determinant properties. Use that operations, row operations or column operations. And first of all, make it smaller. Then we will go ahead. So, here it is, example 14 is there. First of all, what we will do is, LHS से start करते हैं. So, here it is, B plus C, B, C. A, C plus A, B, A plus B. Is equal to. Now what I will do is, पहले मैं ये R1 changes to R1 plus R2 plus R3, मतलब कि दोनों रोज को ऊपर ऐड कर देती हूँ. तो आप बताओ क्या होगा? B उसमें ऐड होगा, C भी ऐड होगा, तो 2 times B plus C हो जाएगा. यस, ये तीनों अगर इसमें ऐड हो गए तो 2 times C plus A हो जाएगा, और इसमें ऐड हो गए तो 2 times A plus B हो जाएगा. Yes or no? Yes. मैंने तीनों को ऊपर ऐड कर दिया. Then I will get this one. Now here B, C. C plus A, C. B, A plus B. Now what I do? 2 तो कॉमन निकल जाएगा. Right? So 2 B plus C, B, C. C plus A, C plus A, C. And B A plus B, B, A plus B. अब आपको देख के पता चल रहा है that ये C plus A सेम है, A plus B सेम है. What does it mean? अगर मैं ये रो को यहाँ माइनस करूंगी, I will get 0. सेम रो को नीचे माइनस करूंगी, then I will get 0. तो 2 zeros, I got it. Therefore, what will I do is, पहले R2 चेंज करेंगे R2 माइनस R1, एंड फिर R3 चेंज करेंगे R3 माइनस R1. मैं R1 को दोनों में से 1 by 1 माइनस करूंगी, तो R1 तो सेम ही रहेगी 2. B plus C, C plus A plus B. Here it is. पहले में इसमें से B minus B minus C. Minus B cut, then it becomes minus C. C plus A minus C plus A, 0. B minus A minus B, minus A. C minus B minus C. C cancel. C minus C get minus A. And A plus B minus A plus B becomes 0. 2 zeros मिल गए. अब सेकेंड रो में से आई विल सब्ट्रैक्ट माइनस, दैट इज कॉमन निकालूंगी माइनस. थर्ड रो से वैसे भी माइनस कॉमन निकलेगा, देन इट बिकम्स प्लस. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो आई विल राइट 2 B plus C, C B, C plus A plus B, 0. यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से भी माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस, अंदर भी सब प्लस. अब 2 zeros are there, then I will open it. अगर हम एक्सपांड करेंगे लास्ट रो से, क्योंकि यहाँ पे 0 है. So here B, I will hide this. Then here it is AC plus A square minus 0, right? Minus A. ये 0 तो निकल जाएगा, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर चलता है. Now A. A मतलब will hide this. Okay. In the bracket AB plus AC minus AC
माइनस BC एंड ये तो 0 है. सो आई विल एक्सपांड बाय द थर्ड रो. मैंने थर्ड रो से एक्सपांड किया. B इंटू दिस माइनस 0 माइनस A दिस माइनस दिस प्लस 0 नहीं लिखा है. सो 2 हियर इट इज ABC प्लस A स्क्वायर B माइनस 0 कैंसल माइनस हियर AC कैंसल. It is A square B minus minus plus ABC. A square B cancel. ABC plus ABC 2ABC then root. So whenever you get two zeros, now it is easy to expand and then we can expand it, otherwise not. So always try to use the properties, make zeros at least 2 zeros. एक भी चलेगा, वैसे नहीं आता है, रेयर केस में नहीं भी आएगा. So that you expand and got the answer. हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था that determinant is just like a maths puzzle. So आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं तो 0 आएगा. So first I will add this whole here. So I will get this 2 same. तो यहां से ये माइनस 0, यहां से ये माइनस 0, फिर मैंने माइनस कर दिया. कुछ और भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ऐड किया. इफ आई वॉन्ट टू डू द कॉलम ऑपरेशन, अगर मुझे कॉलम ऑपरेशन करना है देन ऑल्सो आई विल डू इट. दैट इज C1 चेंज करते हैं C1 प्लस C2. मतलब ये सेकेंड कॉलम को इसमें ऐड करो तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C, ये यहां ऐड होगा. A प्लस B प्लस C, ये यहां ऐड होगा 2C, राइट? यस. फिर ये दोनों सेम रहेंगे. देन यू मे डू समथिंग, माइनस करो तो भी चलेगा. और अगर ये नहीं करना है ये कॉलम ऑपरेशन, तो क्या करेंगे, यहां आप देख सकते हैं कि देखो ये A सेम है, ये C सेम है. सो व्हाट आई विल डू, C2 चेंज करेंगे एंड C1. तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 minus C3. Here B plus C minus A, B minus C minus A 0. यहाँ क्या होगा 0. C plus A minus B, C minus A minus B, A B A plus B. 2 zeros are there, then you can expand. पर ये थोड़ा लंबा हो रहा है, right? So but you may use any column operation, row operation और zero लाने की try करेंगे. You understand this? Yes. So that पहले सम देखो, सोचो कि क्या करने से डिटर्मिनेंट स्मॉलर होगा, अंदर जीरोस मिलेंगे एंड देन अप्लाई द प्रॉपर्टी, राइट? So this is example 14. Now we'll go ahead with example 14. If x, y, z are different and delta is equal to x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus x square, 1 plus y square, 1 plus z square equal to 0. Then show that 1 plus x, y, z is equal to 0. ये जो सम है बहुत सारे पेपर्स में आपको दिखेगा. Right? So that means it is very important sum. ये बहुत important sum है. Right? So now फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से हम शुरू करेंगे जो दिया हुआ है, दैट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज गिवन डेल्टा. अब जैसे कल बताया था कि दो रो सेम है और ऊपर की या किसी एक रो में एडिशन है, देन वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय द एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट. तो सेम वे हियर टू कॉलम्स आर सेम, देन थर्ड कॉलम है एडिशन में, तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट इन द एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट.
अब कैसे करेंगे? एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो सेम है, बट एक डिटर्मिनेंट में फर्स्ट लेंगे 1 1 1 प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 1 1 1 लिया प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिया, बट यू नो दैट हियर इज it is x cube and sorry it is mistake, नहीं तो ये सेम होके 0 हो जाता, राइट? तो दैट इज x क्यूब है। ओके, सो नाउ व्हाट, यहां फर्स्ट रो में से x, सेकेंड रो में से y एंड थर्ड रो में से z यू कैन टेक कॉमन। सो x y z, x square y square z square and 1 1 1 प्लस x फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, y सेकेंड एंड z थर्ड रो में से, तो x कॉमन गया 1 x x स्क्वायर, यहां 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। अब ये दोनों को मुझे सेम करना है, देन यूज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी कि इफ यू इंटरचेंज एनी रो और कॉलम then the sign of the determinant will be changed। तो अब मुझे पहले 1 1 1 चाहिए, सेकेंड एक्स वाई जेड एंड थर्ड दिस, तो मैं क्या करूंगी, पहले ये दोनों कॉलम को चेंज करूंगी, 1 1 इधर और ये इधर। दैट मीन्स उसका सिंबल क्या होगा, C3 to C2, यस और नो? यस, तो आई विल डू C3 C2 यहां पे इसमें, राइट? ओके, सो माइनस कॉमन निकलेगा, एक्स वाई जेड तो जहां है वही रहेगा, यहां इंटरचेंज द कॉलम 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, हियर इट इज 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। फिर सेम करना है, पहले 1 1 1 चाहिए, व्हाट आई विल डू, फिर से कॉलम चेंज करूंगी, तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस बाहर, माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस। सो वी कैन से दैट फर्स्ट यहां 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड is equal to, now both determinant is same, so we can take this determinant common। पूरा determinant अगर common ले लिया तो ब्रैकेट में ये determinant एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में से पूरी कॉमन, तो 1 प्लस सेकेंड टर्म ये determinant कॉमन, देन इट इज रिमेनिंग एक्स वाई जेड, राइट? बट एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो ये डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, राइट? हियर इट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड ओके, सो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि ये 0 है, तो क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? इसको थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करके एक्सपांड करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सो प्रॉपर्टी का यूज, अगर मैंने कल आपको बताया था 1 1 1 है, तो इट इज इजी टू टेक जीरोस। क्यों? क्योंकि यहां से ये माइनस माइनस, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0 विल गेट इजीली जीरोस, इजीली मिल जाते हैं, राइट? सो व्हाट वी विल डू, R1 changes to R1 minus R2, R2 changes to R2 minus R3. So we will get R1 minus R2 0, x minus y, x square minus y square, R2 minus R3 0, y minus z, y minus z square, 1 z z square, 1 plus x y z, right? Yes. You know what you can do now? अब आप क्या कर सकते हैं? Yes, take it common.
What you can take common from the first row x minus y, from the second row y minus z. So we will take x minus y and y minus z common. Here 0, 0, 1, 1, 1, z, x minus y common निकल गया, then factorize it, so x plus y plus z, z square, 1 plus xyz. अब 2 zeros are there, then we can expand it. So is equal to x minus y, y minus z. Here फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करेंगे तो ये दो जीरोस है, ओनली 1 इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, y plus z minus x minus y, 1 plus xyz. So it is x minus y, y minus z. Here y cancel. It is z minus x, 1 plus xyz. Now this is the value of, हमने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, तो इसकी वैल्यू मुझे ये मिली, but it is given that delta is 0. So here delta is equal to 0. So x minus y, y minus z, z minus x and 1 plus xyz becomes 0. डेल्टा तो 0 है, ऑलरेडी इट इज गिवन, तो हमने यहां से शुरू किया, उसकी वैल्यू हमें ये मिली. वन मोर थिंग इज गिवन, तो दिस इज इक्वल टू 0. वन मोर थिंग इज गिवन, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, बट एक्स वाई जेड आर डिफरेंट. अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स विल नॉट 0. अगर डिफरेंट है तो ये 0 नहीं होंगे. सो x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस x इज नॉट इक्वल टू 0. तो फिर ये वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो और कौन 0 है, एंड देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, कीप इन माइंड. स्टार्ट फ्रॉम डेल्टा, राइट इट एज अ एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, सेपरेट दिस कॉलम, फिर दोनों डिटर्मिनेंट को सेम करो बाय चेंजिंग द कॉलम्स. Then take the determinant common, you will get this. अब यहाँ पे 1 1 है, try to make zeros, तो 0 आ गए. Then expand करो, common निकालो, expand it, then you will get the value of this determinant is given. But x, y, z is different, so this is not 0. Therefore, we can say this equal to 0. Understood it? Yes. This is our example 15, right? Most important examples, keep in mind. 15 and 16 आपको बोर्ड के पेपर में मिलेंगे, right? कई एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं, in school exam also, in test also. So example 15 and 16 are important. So now we'll move on the example 16. Show that proof is there, right? और बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, right? So first of all, here it is given this, और आपको जो लाना है वो दोनों को कंपेयर करो. तो here given है a b c एंड लाना है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c. अब a में से 1 अपॉन a कैसे आएगा? You have to take common from a, b and c from the different row. तो क्या हो जाएगा? If you take it common, then 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c, you can get it. Understand?
Yes, so we'll start with the LHS. 1 plus A, 1, 1. 1 plus B, 1. 1 plus C is equal to. Now we'll take common A from the first row, B from the second row, and C from the third row. We can write over here. Take A, B, C common from R1, R2 and R3. राइट, R1 में से अगर A कॉमन लिया, R2 में से B एंड R3 में से C, then what happened? Here A कॉमन तो 1 upon A plus 1. Here 1 upon A, 1 upon A. यहां से B कॉमन लिया, 1 upon B, 1 upon B plus 1 and 1 upon B. यहां से C कॉमन लिया, 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C plus 1. अब जैसा चाहिए था वैसा फॉर्म तो कुछ आया है. देन व्हाट वी विल डू इज, जैसे अगले सम में किया था, सब कुछ ऊपर ऐड कर देंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा. दैट इज 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1. देखो ऐसा ही कुछ है ना. सो दैट वी विल डू R1 changes to R1 plus R2 plus R3. R1 में सारा ऐड करेंगे, जो चेंज होता है वो यहां लिखो. R1 changes to R1 plus R2 plus R3. So we will get here ABC. 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1. 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1. Here over 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1. And here also तीनों को ऊपर ऐड किया तो we will get the same first row, that is 1 upon A, B, C, 1 upon A, B, C, 1 upon A, B, C plus 1. Second and third row same, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon B plus 1, 1 upon C, 1 upon C plus 1. Then take common 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1 common ले लिया from the first row is equal to 1, 1, 1. देखो 1, 1, 1 आ गया. Now what? जब 1, 1, 1 आ जाता है तो it is easy to take zeros. जब 1, 1, 1 आ जाता है तो easy to जीरोस लाना इजी हो जाता है. कैसे इजी हो जाएगा? जैसे हमारा यहाँ 1, 1, 1 आता था तो हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते थे. अब ऐसे रो में आया है 1, 1, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस और ये फ्रॉम हियर, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू वन थिंग. R2 changes to R2 minus R1. R2, sorry, it is column operation, not the row. क्योंकि यहां जीरो करना है तो ऐसे माइनस करना पड़ेगा. सो कॉलम से माइनस करते हैं तो सेकेंड कॉलम चेंजेस C2 माइनस C1, ये मैं यहां माइनस कर रही हूं. और C3 चेंजेस टू अगेन C1, C3 माइनस C1. अगर सब्ट्रैक्शन किया what we will get? C1 तो सेम रहेगा, C2 and C3 will going to be changed. तो C1 1, 1 upon B, 1 upon C. Here 1 minus 1, 0. 1 upon B plus 1 minus 1 upon B. 1 upon C minus 1 upon C. Same here, 1 minus 1, 1 upon B minus 1 upon B, 1. कितने सारे zeros मिल गए? Now you can expand it. तो हम अगर एक्सपांड करेंगे ए बी सी तो फर्स्ट रो से ही एक्सपांड करो. ये दो जीरोस है, ओनली 1, राइट. तो दैट इज 1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 0. तो वी विल गेट ए बी सी 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी प्लस 1. ये आंसर जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया, इजीली मिल जाता है. पर आपको ये सोचना पड़ेगा फ्रॉम वेरी फर्स्ट दैट कि यहां तो एबीसी है
Then how will I get that 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C? By taking common. So मैंने फर्स्ट रो में से A, R2 में से B, R3 में से C कॉमन लिया है. सो कॉमन होगा नहीं तो ये आंसर आ जाएगा. अब यहां से पूरी सारी रोज R1 में ऐड करेंगे. वॉट एवर वी नीड वी गेट इट. अगर वो मिला टेक इट कॉमन. फिर तो 1 1 आता है. एक्सपांड बिफोर यू एक्सपांड द डिटरमिनेंट ट्राई टू टेक जीरोस एंड देयरफॉर ये जीरोस मिल जाते हैं. जब 1 1 1 कॉलम में या रो में है इट इज इजियर टू टेक जीरोस. या तो कॉलम में से माइनस करो या तो रो में से. राइट. एंड देयरफॉर यू गेट दिस आंसर. अभी एक और आंसर बाकी है. ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB. अभी वो बाकी है. सो दैट उसके लिए क्या करेंगे. तो एक आंसर तो मिल गया है और सिंपल आपको पता चलेगा ABC ये आंसर आपको मिला है. इफ यू मल्टीप्लाई दिस ABC दैट एक्सपांड द ब्रैकेट व्हाट यू विल गेट. पहले इसे मल्टीप्लाई करो. A कट. यहां मल्टीप्लाई करो B कट. यहां करोगे तो C कैंसल. 1 दैट इज ABC. तो वो ही तो पूछा है. सो जस्ट 1 स्टेप यू हैव टू गो अहेड दैट यू गेट द आंसर. एग्जाम में कोई भी एक ही पूछेंगे. या तो दिस इक्वल टू दिस या तो दिस इक्वल टू दिस. तो आपको पता होना चाहिए जस्ट 1 स्टेप यू हैव टू गो अहेड टू टेक दिस आंसर. Understand? Yes. So this is our example 16. Now, examples are going to be over before exercise 4.2. So now we'll start exercise 4.2. Exercise 4.2. Using the property of determinant and without expanding in exercise 1 to 7, prove that first x, y, z, a, b, c, x plus a. ये आपको जीरो विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव करना है. मतलब कि इसे आप एक्सपांड करके वैल्यू जीरो नहीं फाइंड कर सकते. सो यू विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट. अब प्रॉपर्टीज कैसे प्रूव करेंगे. सो वील स्टार्ट विद द LHS. इट इज वेरी वेरी इजी. देख के पता चल जाना चाहिए. डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कब होती है. जब एक मैंने कल आपको बताया था कि the primary diagonal 0 and this cross are opposite to each other, then the value of determinant 0. Or else two rows or columns are identical, then the value of determinant becomes 0. So now here दोनों में से कैसे आप 0 ला सकते हैं. So यहाँ पे अपोजिट तो आने से रहा क्योंकि प्राइमरी डायगोनल 0 नहीं है. So what you can do अगर 0 नहीं है तो you add this 2 column. C1 changes to C1 plus C2. C1 में C2 को ऐड करो तो क्या मिलेगा. ये पूरी कॉलम इसमें ऐड करो. X plus A, Y plus B, Z plus C, A B C, X plus A, Y plus B, Z plus C. You know these two columns are identical. If the two columns are identical, then the value of determinant becomes 0, right? Yes. So here it is, question number 2. A minus B, B minus C, C minus A. दिस इज इक्वल टू भी आपको 0 लाना
है। ओके, सो नाउ व्हाट टू डू, अब इसे 0 कैसे लाएंगे, राइट? यस, सो start with the LHS. Now R1 जब कुछ समझ में ना आए हाउ टू डू इट, तब सारी रोज या सारी कॉलम को एक ही कॉलम में या एक ही रो में ऐड कर दो, यू विल गेट समथिंग। या कुछ भी जब नहीं होता है तब हमें ये अप्लाई करना होगा, सो दैट हियर R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पूरी सारी रोज इसमें ऐड कर देते हैं। व्हाट इट गेट, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस, व्हाट इज इट? ये तीनों को ऐड करेंगे, माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस सी, ए कट 0। यहां तीनों को ऐड करेंगे, C एंड माइनस C कैंसल, A माइनस A कैंसल, B माइनस B कैंसल, ये A माइनस A, B माइनस B, C माइनस C 0। तीनों रो को एक साथ ऐड करते हैं तो फर्स्ट को फुल रो कॉमन दैट इज 0 हो जाती है। दैट इज अगर फर्स्ट फुल रो ही कॉमन है, 0 है, व्हाट डज इट मीन? अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे यू विल गेट 0, राइट? अगर फर्स्ट रो ही पूरी 0 हो गई है, पूरी रो 0 हो जाती है, देन द वैल्यू ऑफ इट बिकम 0। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हियर 3 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सो व्हाट वी विल डू, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 से स्टार्ट किया। You have to take something common or you have to multiply something, जैसे 2 rows identical हो जानी चाहिए। Try to think about that कि क्या करेंगे तो 2 rows identical हो जाएगी। Yes? Okay, so I will tell you here 9 से मल्टीप्लाई करो ये पूरी रो को, C2 चेंजेस टू 9C2। अब जब 9 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, मतलब मैं ये कर रही हूं कि बाहर 1/9 से मल्टीप्लाई करूंगी, अंदर 9 से डिवाइड करूंगी। सो ओके, और अगर डायरेक्ट एक चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंड रो को, सेकेंड कॉलम 9 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर दो, that is C1 changes to C1 plus 9C2। अब क्या होता है देखो, 9 7 63, इसमें ऐड करो 65, 9 8 72, इसमें ऐड करो 9 9 81 प्लस 5 7 8 9 65 75 86। 2 rows identical, the value becomes 0. Just like puzzle, mental maths जब आप छोटे थे सिर्फ मैथ्स में पजल सॉल्व करते थे, सेम टू सेम वो ही है। You have to think कि क्या करने से ये 2 rows identical हो जाएगी, right? This is question number 3. Then go ahead with the question 4. Now question number 4 is 1 1 1 BC CA AB AB plus C BC plus A CA plus B आपको इज इक्वल टू 0 लाना है। ओके, सो दैट इट इज वेरी इजी, यू नो। मैं क्या करती हूं, हियर BC CA एंड AB, Here I will multiply, फिर लिखेंगे डायरेक्ट AB प्लस AC
बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी। मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये पूरी कॉलम यहां अगर ऐड कर दो तो क्या बनेगा? दैट इज C2 चेंजेस टू C3 प्लस C2। C3 में ऐड करो बी सी सी ए बी, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां ऐड करेंगे तो पहले ए बी बी सी सी, यहां ऐड करेंगे तो भी ए बी बी सी सी ए। मैंने ये पूरी कॉलम यहां ऐड कर दी। नाउ आई विल टेक दिस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम। यस, सो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आई विल टेक कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम से सब कॉमन ले लिया 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1, so two columns identical हो गई। If the two columns are identical, it becomes 0, right? So या तो दो कॉलम आइडेंटिकल होनी चाहिए, या तो प्रिंसिपल डायगोनल 0 एंड क्रॉस में अपोजिट होने चाहिए, या तो पूरी एक रो और कॉलम 0 होनी चाहिए। Then you will get that 0 answer. Without expanding, by using the property, you can say it is 0. Right? Yes. So this is our question number 4. Now, question 5. The question number 5 is B plus C, C plus A plus B, Q plus R plus P, P plus Q, Y plus Z, Z plus X plus Y is equal to 2, ABX, BQY, CRZ। यस, ओके। सो यहां पे अब 0 नहीं लाना है। नाउ इट इज नॉट 0, हमें 0 नहीं लाना है, ये लाना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द LHS, राइट? ओके, सो LHS से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ करो जिससे ए बी सी सब कैंसल होके सिर्फ एक ही रह जाए, सो दैट हम क्या करते हैं, ये यहां माइनस करेंगे तो सी सी कट, और ये माइनस करेंगे तो बी बी कट होगा, सो दैट R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। ये सारी ऊपर माइनस कर देंगे। सो पहले क्या होगा, हम लिखते हैं पूरा B प्लस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस Q प्लस R माइनस P माइनस Q। Here A प्लस C A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। राइट, मैंने पूरी सारी दोनों रो को यहां माइनस कर दिया है। सो आई विल गेट हियर C कट B कट माइनस 2A प्लस C A प्लस B, R कैंसल Q कैंसल माइनस 2P, हियर Z कैंसल Y कैंसल माइनस 2X, ये मिला। सो अगर मैं फर्स्ट रो में से -2 आई विल टेक कॉमन, तो मुझे फर्स्ट रो मिल जाएगी। सो आई विल टेक -2, दैट इज कॉमन लिया तो A P X, A प्लस C R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y।
देखो फर्स्ट रो तो हमारी आ गई, राइट? यस। अब सेकेंड रो लाना है। सो हाउ टू टेक द सेकेंड रो? अब सेकेंड रो के लिए सोचते हैं। इज इक्वल टू, यहां से मुझे यहां क्या चाहिए? देखो बी क्यू वाई, राइट? सो अगर मुझे बी क्यू वाई चाहिए तो ए दोनों में से माइनस कर दूं, पी दोनों में से माइनस और जेड एक्स दोनों में से माइनस करूं तो मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। मतलब कि ये जो रो है मैं सेकेंड एंड थर्ड दोनों में से माइनस कर देती हूँ। अब देखिए ए दोनों में है, P इज बोथ, X इज इन बोथ द रो, जिसे मैं माइनस कर सकती हूँ। सो दैट -2 ऊपर फर्स्ट रो APX, यहां A माइनस करेंगे, C माइनस P तो R माइनस X तो Z। यहां फिर से ये रो माइनस करेंगे, A माइनस A तो B, P माइनस P तो Q, X माइनस होगा तो Y। जो चाहिए वो मिला। थिंक, तो बी क्यू वाई चाहिए, सी आर जेड चाहिए, बट ये हमें उल्टा सुल्टी मिल रही है। सो वी हैव टू इंटरचेंज द सेकेंड एंड थर्ड रो। तो सेकेंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि व्हेन यू इंटरचेंज द रोज और कॉलम्स देन साइन विल बी चेंज। सो हियर माइनस अगर बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस APX, मैंने ये क्या किया? C2 C3 सॉरी R3 चेंज किया। सो BQY CRZ, देखो ये मिल गया, दैट इज RHS। अंडरस्टूड? थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई कोई सम ऐसा होगा जो देखने से समझ में ना आए। सो यू हैव टू थिंक and then do it. That is our question number 5. So now we'll go ahead with the question number 6. Up to 7 आपको without expanding proof करना है. So the question number 6 will be 0a minus b minus a 0c minus c bc 0 is equal to 0. You have to prove, right? Okay, so now this is the property only. देखो प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, क्रॉस में क्या है? समझ में आ रहा है? क्रॉस में क्या है? अपोजिट नंबर्स है, एंड देयरफॉर इट इज 0. So we can say that here it is. So here it is property है. अगर MCQ में पूछा है then you can write the direct answer. But here MCQ नहीं है. अगर prove that में पूछा है तो you have to do something. We know that is the property. अगर property ही prove करनी है तो क्या करेंगे? तो that is we will take here delta is equal to 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0. Now we'll take Ri to Ci, that is all the rows is changes to corresponding columns. तो value of determinant will not change. तो यहाँ 0 a minus b, कॉलम रोज जो है उसे कॉलम बना देगी, माइनस a 0 माइनस c b c 0 लाइक दिस। Ri to Ci किया मतलब रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दिया, दैट मीन्स रोज है उसे कॉलम बना दिया। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। अब क्या करती हूँ, फर्स्ट रो में से -1 कॉमन, सेकेंड रो में से भी -1 कॉमन, थर्ड रो में से भी -1 कॉमन लिया तो क्या होगा? 0 a माइनस b, माइनस हो जाएगा अंदर, माइनस a 0 माइनस c b c 0। अब ये क्या है देखो, that is delta. So we can write delta is equal to, this is minus minus plus, again minus is there,
सो -1 इंटू डेल्टा, ये फिर से डेल्टा हो गया। अगर ये डेल्टा हो गया तो माइनस डेल्टा इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया डेल्टा इक्वल टू 0, प्रूव्ड। समझ में आया क्या किया? वो पहले रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज किए, तो यहां साइन चेंज है देखो, तो फिर से उसे डेल्टा जैसा बनाने के लिए तीनों रो में से मैंने -1 को कॉमन निकाला। अगर -1 कॉमन निकला तो ये फिर से डेल्टा हो गया। माई डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा कब होता है? जब दोनों का एडिशन 0 हो जाए, और दैट इज 2 डेल्टा 0 है तो डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। सो दैट डेल्टा इक्वल टू 0 प्रूव्ड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 is there. Now we'll go ahead with the question number 7. So, the question number 7 is minus a square ab is ba minus b square bc ca cb माइनस सी स्क्वायर, और इस इक्वल टू प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। LHS से स्टार्ट किया। अब LHS से स्टार्ट किया तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन निकलेगा? A, सेकेंड रो में से B, थर्ड रो में से C, तो इट इज माइनस ए बी सी, A कॉमन, B कॉमन, A माइनस बी सी, यहां से C कॉमन, A B माइनस, ये हमने क्या कर दिया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में से ए बी सी कॉमन ले लिया। अगर इसे मैंने कॉमन लिया तो नाउ इट इज इजी टू मेक जीरोस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस ए है, यहाँ और यहाँ ऐड करूंगी तो इट बिकम्स 0, सो दैट R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1। मुझे माइनस भी नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, एंड R3 चेंजेस टू R2 प्लस R1, R3 प्लस R1, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी माइनस ए बी सी। चलो R2 में R1 ऐड कर, माइनस ए प्लस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, 2c। R3 में भी R1 ऐड करो, 0, 2b 0। नाउ यू कैन एक्सपांड, अब उसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो सेकेंड रो में 2 zeros है तो I will expand through the second row, so that is equal to ABC. Okay. Sorry. But here question number 7 तक without expanding लिखा है, but now it is not possible. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि 0 है या कुछ, तो आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 विदाउट एक्सपांडिंग कर दीजिए। 7 में आपको एट लास्ट एक्सपांड करना ही पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू एक्सपांड इट एंड देन ओनली यू गेट द आंसर, अदरवाइज नॉट। विदाउट एक्सपांडिंग ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। सो नाउ वी कैन एक्सपांड थ्रू दिस रो। फर्स्ट 0 है, सेकेंड 0, सिर्फ 2c से एक्सपांड करना है, सो 2c। नाउ दिस एलिमिनेट, 0 0, ओह आई एम सॉरी, आई हैव डन दिस मिस्टेक। 2c से एक्सपांड करेंगे तो ये होगा ना, ये तो मैं 0 ले रही थी, ये होगा, ये तो एक 0 नहीं लेना है, -2ab, इट इज -2ab, राइट? कुछ गड़बड़ कर रही हूं मैं, -a -b -c 0 0 2c 0।
इसे एक्सपांड करेंगे -2ab -0. यस, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट. सो हियर विल नॉट एक्सपांड बाय दिस. ये सम में थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ही, राइट? सो दिस विल वी हैव टू एक्सपांड बाय दिस. -a 0 -4bc and that is equal to abc minus plus 4abc and therefore it is 4a square b square c square will get RHS. So in textbook it is given that without expanding, but ये sum without expanding नहीं हो रहा है, तो हम इसी तरह उसे करना पड़ेगा. Understood that? ये sum में यही होगा, nothing else. So that this is our question number 7 of exercise 4.2. From the exercise 4.2 question number 8 we will go ahead in the next lecture. Till then, goodbye. Do this sums. It is very important sums. Do it thoroughly. 2-3 times you have to practice it. Then it is very interesting for you. Bye.